Assalamu alaikum. I am Daniel. Today we are going to start the English book of class metric. English. This is our English book of class metric. English. This is the contents of the English book of class metric. The first lesson of English is today we are going to start the voice of God of English. This poem is written by Louis A. Newman. ये पोएम लुइस आई न्यूमैन की लिखी हुई है जो 1893 में पैदा हुआ था और 1972 में वो वफात कर गया था. He was born in Providence. ये प्रोविडेंस में पैदा हुआ था जो यूएसए का शहर है. He studied at Brown University. वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था. And after his decorate lecture at Columbia, और जब उसने डेकोरेट किया था लेक्चर कोलंबिया का he is the author of many books. ये many books बहुत सारी बुकों का ऑथर है. On religious subjects, on जो इस्लामी सब्जेक्ट्स हैं. ये जो पोएम है हमें रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड में ब्रिंग्स आउट करती है. I sought the hear of voice of God. इसमें शायर कह रहा है कि मुझे चाहत थी कि मैं खुदा की आवाज़ सुनने के लिए सुनूं and climb the topmost steeple. मैं सबसे बड़ी से बड़ी चोटी में के ऊपर खड़ा हुआ. But God declared, पर खुदा ने कहा, go down again and के नीचे चले जाओ. I dwell among the people. लुइस आई न्यूमैन. मैं लोगों के बीच में रहता हूँ. Lines to steeple means the tallest part of a religious building. Why did author climb the steeple? Author climbed the steeple. और steeple के ऊपर चोटी के ऊपर बड़ी से बड़ी चोटी के ऊपर क्यों गया था? The author climbed the steeple because he has a strong desire to hear the voice of God, and that he was praying day and night to God that he would further elevate his position where he could hear the voice of God. ये ऑथर इसीलिए चाहता ये इतनी बड़ी से बड़ी चोटी के ऊपर चला क्योंकि इसको ये चाहता था कि ये खुदा की आवाज़ सुन पाए. और ये खुदा से दुआ करता था दिनों रात के खुदा उसे अपनी जगह बता दे जहाँ वो खुदा की आवाज़ सुन पाए. Why did God tell him to go down again? The God tell him go down again because he is not found in the sky only. He is dwell among the people. खुदा ने उसे क्यों कहा कि नीचे चले जाओ. खुदा ने उसे नीचे इसीलिए कहा क्योंकि वो सिर्फ आसमान में नहीं रहता बल्कि वो दिलों के बीच में रहता है. लोगों के दिलों के बीच में रहता है. Say in your own words what you think that is the message of this poem. The message of this poem is that God is omnipresent. He is found everywhere. The one way to close to God is to serve a humanity. इस पोएम से हमें ये सबक मिलता है कि जो गॉड है अल्लाह ताला है वो ओमनी प्रेजेंट है. मतलब वो हर जगह पर मौजूद है और हर जगह पर मौजूद है. एक ही ज़रिया उसके करीब जाने का है कि हम ह्यूमैनिटी की मदद करें, इंसानियत की मदद करें. ये पोएम यहीं पर ख़त्म हो गया. Number 2 lesson. This is a lesson. The wise caliph. The caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and he go through the streets of Baghdad.
He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वाइस कैलिफ मतलब खलीफा। खलीफा हारून रशीद वो मशहूर था अपनी इंसाफ की वजह से और अपनी जहानत की वजह से। वो हर रात अपने आप को आम आदमी जैसा बनाकर बाहर जाता था और लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी प्रॉब्लम्स गेन करता था। वन डे वो उनकी प्रॉब्लम्स जानता था। वन डे वन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब वो कोर्ट में काम कर रहा था, टू मैन होल्ड कर रहा था कोर्ट को, टू मैन वर ब्राउड बिफोर हिम, दो आदमी इसके सामने लाए गए। वन ऑफ देम वर वेल ड्रेस, एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एक को, दूसरे को and appear to be a well-to-do respectable citizen, और दूसरा आम इंसान की तरह था। while the other and appear to be a well-to-do respectable citizen while the other seemed to be a beggar, और दूसरा beggar था यानी फकीर था। because he was in rags, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। These two men were holding between them a beautiful horse, इनके बीच में एक beautiful horse था। The Qazi approached the Caliph and said to him, O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. काजी इसको कैलिफ के पास इसीलिए लाया था और कह रहा है कि काजी के ओ लीडर, इंसाफ करने वाले लीडर, मैं एक डिस्प्यूट लेकर आया और ये मुझसे ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ जा सकता और ये बहुत मुश्किल डिस्प्यूट है, इसलिए मुझे पता है कि आप अपनी जहानत और इंसाफ की वजह से ये डिस्प्यूट भी सॉल्व कर लेंगे। फिर कैलिफ पूछता है, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, झगड़ा क्या है, झगड़ा किस बारे में है। These two men here are fighting over this horse. फिर काजी कहता है ये जो दो आदमी हैं वो इस हॉर्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his. आपस में दोनों एक दूसरे पर क्लेम कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा, और वो स्वेस भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरा घोड़ा है, कस्में भी खा रहे हैं ये मेरा घोड़ा है। स्टेप फॉरवर्ड, थोड़ा कैलिफ आगे बढ़ा। द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस मैन, कैलिफ ने ऑर्डर दिया वेल ड्रेस मैन को, एंड लेट्स हियर दैट व्हाट यू हैव टू से, और उसे पूछता है कि बताओ इस बारे में, इसके बारे में क्या हुआ था, तुम बताओ। दोनों से पूछता है, पहले वेल ड्रेस के बारे में पूछता है। द मैन सेड टू द कैलिफ, फिर जो आदमी होता है वेल ड्रेस मैन वो कहता है कैलिफ को, ओ लीडर ऑफ द फेयरफुल, ओ इंसाफ करने वाले लीडर, आई बेग टू बिलीव मी दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ, मैं अपने आप पर बिलीव रखता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। द मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब सुबह मैं शहर जा रहा था, आई सो दिस बेगर लिम्पिंग अलोंग अहेड ऑफ मी, जब मैंने देखा कि ये जो बेगर है फ़कीर, ये मेरे आगे लिम्पिंग कर रहा है। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हुफ्स, और वो हॉर्स के हुफ्स की वजह से वो आया था, उसको आवाज़ आई थी हॉर्स के हुफ्स की। He turned round and mentioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. मैं गया तो वो आगे मेरे खड़ा हुआ था, मैंने अपनी घोड़े की रस्सी खींची जिसकी वजह से वो खड़ा हो गया। He begged to me to give him a ride up to the city gate. उसने मुझसे कहा कि मुझे राइड दे दो सिटी गेट तक। He was lame. ये लेम था। I felt sorry for him. मैं इसको सॉरी कहता हूँ, उस पर सॉरी कह रहा हूँ। So I pulled him up behind me on the horse. मैंने उसको उठाकर अपने घोड़े के पीछे बिठा दिया। When we reached the city gate, जब हम सिटी गेट के पास गए, I stopped and turned round to help him get down.
मैंने घोड़े को स्टॉप किया और मैं उतरा और मैंने कहा कि वो उसे मैं उतार दूँ। He refused to dismount. उसने मना कर दिया कि मैं नहीं उतरूँगा। I was puzzled. मैं परेशान हो गया। And gently told him to get down because we had reached the city gate. और फिर से कहा कि हम सिटी गेट पर पहुंच गए हैं, उतरो। He said, why should I get down? I give you a ride and now you want to rob me of my horse. और उसके बाद वो कहने लगा कि मैं जो ये मेरा घोड़ा है, मैंने तुम्हें राइड दी, और मुझसे तुम मेरा घोड़ा चोरी करना चाहते हो। Then the beggar limped forward and said, फिर फकीर आया आगे लिम्प करके और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर। ओ इंसाफ करने वाले लीडर, आप मददगार हैं पुअर्स के, फ़कीरों के आप मददगार हैं। यू आर वाइज, आप इंसाफ करने वाले हैं। एंड जस्ट कैलिफ, और आप एक खलीफा भी हैं। यर पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्वेली एंड इंजस्ट फ्रॉम द रिच मैन। आइए मुझे बचाइए ना इंसाफ वाले में। आई कैन श्योर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा ये मेरा घोड़ा है। यू मस्ट बी थिंकिंग like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. फिर फिर आपको लगता होगा कि ये मेरा घोड़ा कैसे हो सकता है, ये इतना अच्छा घोड़ा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन दिस, क्योंकि इस एक घोड़े की वजह से आज मेरे कपड़े फटे हुए हैं। वॉट एवर मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिए। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू सिटी ऑन माई हॉर्स, जैसा कि आज मैं सुबह आ रहा था, शहर के पास आ रहा था, शहर में आ रहा था ऑन माई हॉर्स, आई नोटिस द मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने नोटिस किया कि एक आदमी एक वॉक कर रहा था रोड पर। I noticed the man. When I come close to him, he stopped me and requested to lend him my horse. जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे घोड़े पर बिठा दो और मुझे सिटी गेट तक छोड़ दो। For he was in a great hurry to reach the city, क्योंकि ये बहुत जल्दी में था सिटी पहुंचने के लिए। Of course I could not lend my horse to a complete stranger, could I? Instead I let him ride my horse. मैंने कहा कि वो घोड़ा चलाए और मैं खुद उसके पीछे बैठ गया। For he was in a great hurry to reach the city, while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि उतरो, ये मेरा घोड़ा है। Such a fine horse should not belongs to a beggar. इतना अच्छा घोड़ा बेगर का नहीं हो सकता। He said, now be off and don't you mention it to anyone, and even if you do, nobody is going to believe you. उसके बाद उसने कहा कि नो, अब कोई भी तुम पर बिलीव नहीं करेगा। Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is your own. अब सर मुझे प्लीज़ इस रोबर से मुझे बचाइए और मुझे अपना घोड़ा वापस कीजिए। I think this case is not very difficult to decide, said the caliph. खलीफा ने कहा कि ये इतना मुश्किल केस नहीं है सॉल्व करना। ना, काजी से कहा, I shall decide it in a minute. मैं इसको 1 मिनट में डिसाइड कर लूँगा। Tell these men to place their hands on the horse. फिर मैंने कहा कि ये लोग अपने हाथ घोड़े पर रखे। Let the beggar do it first. पहले beggar करे। When the beggar touched the horse, it winced, and if it does not like the touch of horse or hand of his hand, जब उसने घोड़े को हाथ लगाया, बेगर ने, फ़कीर ने उसको हाथ लगाया घोड़े को, तो वो पीछे मुड़ा और मतलब वो जैसा कि वो उसका हाथ को पसंद नहीं करता। But at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and knighted with pleasure. लेकिन जब रिच मैन, अमीर इंसान ने जब उसको हाथ लगाया
तो वो खुश हो गया और वो अपनी आवाज़ निकालने लगा और खुशी के मारे. The horse belongs to him, pronounced the caliph. कैलिफ ने कहा ये घोड़ा इस अमीर शख्स का है. गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर. अब ये घोड़ा अपने मास्टर को दे दो. इसके मास्टर को दे दो. Then the caliph turned to the beggar and said. फिर जो खलीफा था वो बेगर की तरफ मुड़ा और कहा You are a liar. तुम झूठे थे. And a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. तुमने कोशिश की कि तुम घोड़ा से छीन लो और चोरी कर लो. You deserve severe punishment. तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी. But I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness of the gentleman here. मैं तुम्हें इसलिए माफ़ करूँगा जब तुम इस सिटीज़न से माफ़ी मांगोगे, इस अमीर शख्स से. The rich man laterally forgave the beggar and feeling sorry for him. तो उसी वक्त बेगर रिच मैन के से माफ़ी मांगी और उसे सॉरी कहा एंड टुक आउट हिज पर्स. तो रिच मैन जो अमीर शख्स था अपना पर्स निकाला एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन. तो उसे एक गोल्ड कॉइन्स का हैंडफुल दिया. द नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज एवरीबडी इन द कोर्ट. सब इस बात पर हैरान रह गए इस रिच मैन की सादत से. What was Caliph Harun al-Rashid known and respected for? The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. Caliph Harun al-Rashid क्यों मशहूर था? वो अपनी जहानत और अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था. Why did he go through the street of Baghdad at night? He go through the street of Baghdad at night. At night he was the biggest caliphate. He wanted to caliphate of Muslims. He want to know the subjects of every person. ये रात को क्यों बगदाद की गलियों से जाता था? ये बगदाद की गलियों से इसीलिए जाता था क्योंकि वो कोशिश करता था कि वो लोगों की प्रॉब्लम जान सके और उसे सॉल्व करे. What did the Qazi say to the Caliph? The Qazi said to the Caliph that he had brought dispute in which he had failed to settle. He said that the Caliph will decide it in few minutes with his wise and justice. Caliph के पास काजी क्या कह रहा था? Caliph को क्या कह रहा था काजी? खलीफे को क्या कह रहा था काजी? उसने कहा था कि मैं एक डिस्प्यूट लाऊं जिसमें मैं फेल्ड हो गया हूँ उसको सही करने में. मुझे पता है आप अपनी जहानत की वजह से इस केस को सॉल्व कर लेंगे. What was the dispute between the rich man and the beggar? The dispute between the rich man and the beggar was on the white horse. The dispute between the rich man and the beggar was on the ownership of beautiful white horse. What did the rich man tell the caliph? The rich man tell the caliph that he had brought when he was riding on a city gate. Then he saw a beggar limping on the road. Sorry for him. Then he allowed him to sit behind him. And when we reached city gate, he claimed to be a master of the horse. रिच मैन ने कैलिफ से क्या कहा? रिच मैन ने कैलिफ से कहा कि मैं जब जा रहा था तो जब मैं सिटी गेट जा रहा था तो उसने एक फ़कीर को देखा जो लिम्पिंग कर रहा था. इसीलिए मैं सॉरी कह रहा हूँ. मैंने अलाउ कर लिया उसे पीछे बैठने के लिए. जब हम सिटी गेट पहुँचे तो वो कह रहा था कि मैं मास्टर हूँ सिटी गेट का. Why did the beggar tell the caliph? What did the beggar tell the caliph? beggar ने कैलिफ से क्या कहा? तो beggar ने कैलिफ से कहा कि मैं जब सिटी गेट जा रहा था कि वो एक मैंने ये रिच मैन मिला और वो कह रहा था कि वो ग्रेट हरी में था. वो कह रहा था मुझे जल्दी सिटी गेट पहुंचना है. मुझे जल्दी सिटी गेट पहुंचना है. तो मैंने अलाउ कर दिया उसे राइड के लिए. वो मेरा घोड़ा चला, मैं उसके पीछे बैठ गया. जब सिटी गेट पहुंचे तो वो कह रहा था ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा है. The beggar said tell the caliph that when he was going to city gate he saw that the rich man was in a great hurry. Then he allowed him to alight and he sat behind him. On reaching the city gate, he claimed to be the master of the horse. Why did the beggar refuse to get down the horse? The beggar refused to get down the horse because
refused to get down the horse because it was very big cheated. द बेगर ने क्यों रेफ्यूज़ कर दिया उस घोड़े से उतरने के लिए? बेगर ने इसीलिए रेफ्यूज़ कर लिया क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि वो उस घोड़े को चोरी कर ले. How did the horse fail when the rich man touched it? What did the horse do when the beggar touched it? The horse wins when the beggar touched it. जब बेगर ने उसे हाथ लगाया घोड़े को तो उसने कुछ घोड़े ने नहीं किया. उसने पीछे देखा और उसने उसे ये पता चला था कि ये हॉर्स इसका नहीं है. How did the horse feel when the rich man touched it? जब उसको अमीर शख्स ने हाथ लगाया तो when the rich man touched it, it snorted and ignited with pleasure. वो खुशी के मारे अपनी आवाज़ें निकाल रहा था. तो इससे ये पता चल गया कि ये इसका घोड़ा है, रिच मैन का घोड़ा. What did the caliph say to the beggar? The caliph said to the beggar that he was liar and wingsman. He wanted to rob the horse from the respectable citizen. कैलिफ ने बेगर से ये कहा कि वो झूठा था और तुम झूठे थे. तुमने कोशिश की कि एक इतने अच्छे सिटीजन से घोड़ा चोरी करने की. थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफ़ी था. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन अर्लीस्ट. थैंक यू.